ٹرائی کر لیتے ہیں. دیکھو فائنلی فار دا فرسٹ ٹائم ان لاسٹ 10 to 15 years آئی ایم ٹیلنگ یو لاسٹ 10 to 15 years پہلی دفعہ پاکستان ٹیم سیٹل ہونے جا رہی ہے. بالکل. اب ایک کپتان ہے آپ کے پاس. ہاں جی ایک کپتان. اس کو چینج نہیں کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے نا. نہیں کریں گے. پہلے تو یہ تھا نا کہ اس کو اتارو, بورڈ کو اتارو, چیئرمین کو اتارو. دیکھو اب چلو جیسے بھی سعد مانی صاحب ہیں, وسیم خان نے اپنی کیپیسٹی جتنی کیپیسٹی اپنا کام تو ٹھیک کر رہے ہیں نا یار. جتنی کوشش بن پا رہی ہے ان سے وہ تو کر رہے ہیں جی. اس کے بعد ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو اس کیپیسٹی سے زیادہ اب ایکسپیکٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری اب ٹیم سیٹل ہونے جا رہی ہے. اب اس میں ہمیں ایک چیز اچھی چیز نظر کیا آ رہی ہے, کپتان ہمارا سیٹل ہے کہ ہمارے پاس اب 5 سال کا کپتان آ گیا. بالکل. اب ہم نے اس کو بولنا سکھانا, ہم نے اس سے کام لینا ہے, اس سے بیٹنگ اچھی کروانی ہے, فنیشنگ کروانی ہے, سارا کچھ کرانا ہے, پریشر کانسٹنٹ رکھنا ہے. لیکن اس کی اپنی سے بھی ہے اس دفعہ. ٹھیک ہے. ابھی اپنی سے کے ساتھ بھی لڑکے کھلا رہے ہیں. اب یہ ٹیم تھوڑی سی ریفائنڈ ہو جائے, تھوڑی سی اور ریفائنڈ ہو. یہ T20 کا بیسٹ اسکواڈ ہے بائی دا وے. یہ از دا ون آف دا بیسٹ اسکواڈ پروبیبلی ود ون اسپنر. اگر ایک ایڈیشنل اسپنر حفیظ جو اگر بولنگ کر لیتا ہو, ہاں جی, اگر کرتا ہوتا یا کر رہا ہے, تو دس از دا موسٹ ڈینجرس سائڈ ان دا ورلڈ. ایسے ہی. دس از دا پرابلی سائڈ ہوز وننگ دا ورلڈ کپ ان انڈیا. انشاءاللہ. ہاں جی انشاءاللہ. اچھا آگے سنیں بات. اب اس اسکواڈ کو تھوڑی سی ٹویکنگ کے ساتھ, تھوڑی بہت ٹویکنگ کے ساتھ T20 اسکواڈ آپ کا اور مہینے 2 میں سیٹل ہو جائے گا. صحیح. ایسے ہی ہے سر. ایسے ہی. اور آپ کرتے کراتے اکتوبر تک پہنچ جائیں گے. اکتوبر تک آپ کے پاس ایک سیٹ فٹ ٹیم T20 کی تیار. ایسے ہی. ون ڈے میں آپ کو پرابلم مڈل آرڈر کا تھوڑا سا کافی زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, بات جائز ہے. بالکل جائز بات ہے. بالکل ایسے ہی. وہ بھی سیٹل کرنے میں کامیاب کہیں نہ کہیں ہو جائیں گے یار کہ چلو نہیں یہ نہیں ساؤتھ شکیل کے ساتھ نہیں, رضوان کو اوپر یا نیچے کہیں پہ کہاں کھلانا ہم نے, یہ بھی سیٹل کر دینا ہے, نمبر ایڈجسٹ کر دینے ہم نے. اچھا یہ بھی ہو جائے گا. اٹ ول جسٹ ٹیک سم ٹائم بٹ ناؤ وی آر ریڈی فار دا کنٹینیوٹی آف دا پاکستان ٹیم. اینڈ ناؤ دا پاکستان ٹیم از فائنلی بیکمنگ ا گڈ اسکواڈ ٹو لک اپ فور. الحمدللہ. میں آپ کی ان ساری باتوں سے اگری کرتا ہوں. اس سے تھوڑے سے پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا جی, غالباً اس سوال کو مہینے 2 مہینے ہو گئے. میں آج ویسے ہی دہرانا چاہتا ہوں. الگ ابھی ہم نے بریک کی طرف بھی جانا, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے. بہت اچھی بات ہے. جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم اسٹریم لائن ہو چکی ہیں چیزیں, ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے, ہماری کھلاڑیوں کی سلیکشن ٹھیک ہو رہی ہے. تھوڑا سا سلیکشن ڈیلیما اب ہمیں یہ آ رہا ہے کہ یار سب کھلاڑی الحمدللہ اتنا اچھا پرفارم کریں تو کس کو رکھیں کس کو نہ رکھیں, کس کی کیا جگہ بنتی ہے. پرفیکٹ. لیکن پچھلے کچھ عرصے میں ایک سوال جو میں نے پوچھا تھا بریک کے بعد آتے ہیں, شعیب بھائی سے جواب لینا چاہتے ہیں کہ حال ہی میں الحمدللہ اگر ہم پی سی بی کو دیکھیں تو کوئی ایسا نام نہیں ہے جو پی سی بی کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. تو پہلے جتنے لوگ کرٹیسائز کرتے تھے ایونچولی ہم نے دیکھا کہ وہ پی سی بی کا حصہ بنتے چلے گئے. کیا اس وجہ سے کرٹیسزم ختم ہو گئی ہے؟ یہ آفٹر دا بریک کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. گیم آن ہے. ویلکم بیک. تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ٹیونڈ ٹو پی ٹی وی اسپورٹس. یو واچنگ گیم آن ہے ود شہزاد احسان خان, اور پی ٹی وی اسپورٹس کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ لائیو موجود ہے مسٹر شعیب اختر. خواتین اور حضرات, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے جس بات کا ذکر کیا obviously وہ قابل تعریف بھی تھی کہ جب ہماری ٹیم اسٹریم لائن ہوگی ہے, بہت سارے کھلاڑی ایسے ہیں جو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں الحمدللہ, تو کچھ خاص چینجز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انفیکٹ اب کمپٹیشن اس بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ یار کس کو کھلائیں کس کو نہیں کھلائیں. تھوڑی سی پریشان کن ہوتی ہے سچویشن, بٹ لیکن جب آپ کا پول اتنا امیزنگلی پریپیئر ہو چکا ہو, اسٹریم لائن ہو چکا ہو, تو اب اس کا کرٹیسزم بنتا نہیں ہے. لیکن ایونچولی جیسے ہی خدا نخواستہ پاکستان ہار جاتی ہے تو کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے, موقع نہیں دیا جاتا ہے. یا تو ہم کوچز کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ہم کھلاڑیوں کے بارے میں بات شروع کر دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اسپیس دینا چاہیے. میں شعیب بھائی کی ٹیک اس پہ جاننا چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم ایک لیجنڈری کرکٹر کے بارے میں بات کریں گے جن کا 100واں T20 محمد حفیظ. لیکن پہلے میں ذرا جواب لے لوں. کرٹیسزم سر, جو ڈیو کرٹیسزم ہوتا ہے ہم ضرور کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ چیزیں بہتر ہوں. لیکن جب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہوتی ہے, ایک آدھا میچ ہم ہارتے ہیں خدا نخواستہ, پھر سے وہی کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی وجہ سوال کرنے والوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. جو سوال کرتے ہیں ان کی وجہ سے کرٹیسزم آتا ہے. صحیح ہے. اگر آپ سوال صحیح کریں تو ہم کرٹیسزم نہ کریں. ٹھیک ہے. لیکن اب حفیظ کو واپس لانے میں خالی حفیظ کا ہاتھ نہیں تھا نا. ایسا ہی ہے. اس میں کچھ ہمارے دوستوں کا تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ نہ دے آج سے 3 سال پہلے. بالکل. آج وہ انٹیگرل پارٹ ہے. اور کرٹیسزم یہ کر رہے تھے کہ کیوں چھوڑ رہے ہو. بالکل. اور کرٹیسزم وہ پازیٹو بھی تھا. اور اگین آئیڈینٹیفائی کرنا یہ کرٹیسزم نہیں ہوتا. اگر آپ کی دیکھیں پروگرام کی ریچ ہر طرف پہنچتی ہے, بات آپ کی ہر جگہ پہنچتی ہے, سارے لوگ سنتے ہیں, گھر والے بھی سنتے ہیں, پلیئرز بھی سنتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی سنتے ہیں سارا کچھ.
देखिए वो मैसेज पहुंचाना होता है, यार आप ये गलत कर रहे हो, इसको ठीक कर लो. ठीक है. और मुझे खुशी होती है कि देखिए ना, पाकिस्तान टीम इज इन द प्रोसेस टू बिकमिंग अ बेटर टीम नाउ. ट्रू. And then eventually becomes a great team. But now you have a bunch of people, those who are competing their space, competing for the space, within the space, जो space इतनी सी रहेगी अब. ये होती है अच्छी टीमों की निशानी, जिनके टीमें स्ट्रांग होती है, बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता है. और T20 में आपको अगर जगह बनानी है, you have to play very, very, very extraordinarily in terms to be at the part of Pakistan team now. Because यहाँ पे हफीज तो जगह छोड़ेगा नहीं, कंपटीशन बढ़ गया. You know, because he is also trying to get into one day's team. Why not? True. और at the same time देखिए क्रिटिसिज्म ये आ रहा था कि कंटिन्यूटी ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं था, कंटिन्यूटी ऑफ द सिलेक्शन कमेटी नहीं था, कंटिन्यूटी ऑफ द पाकिस्तान स्क्वाड नहीं था. ठीक है. ये क्रिटिसिज्म था. और जो जिसका ड्यू बनता था, जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए था, जिनको मौका मिलना चाहिए, उनको मौका न मिले तो ऑब्वियस दुख होता है. उनके बारे में बात करना चाहिए. मैं तो उस्मान सलाउद्दीन से तो नहीं मिला, बिल्कुल. मैं तो साउथ शकील को जानता, पर मेरी शक्लें भी नहीं पता उनकी. ट्रू. लेकिन हम उनको इसलिए प्रमोट करते हैं कि उनको चांस मिले और ड्यू क्रेडिट जो उनका बनता है वो बनना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली देखें, जो क्रिटिसिज्म की आपने बात की, वो एक रैंडम और एक फॉर नो राइमरी रीजन क्रिटिसिज्म भी करते हैं जो जायज नहीं है. प्लेटफॉर्म आने का मतलब ये नहीं होता कि आप चीफ जस्टिस बन के बैठ जाएं और अपना वर्डिक्ट देना शुरू कर दें. जो आपकी कैपेसिटी एज ए एंकर आप वो करें, हमारी एज ए कैपेसिटी एज ए एक्सपर्ट आप बताएं, लेकिन अपने एजेंडे लेके, और मैं काफी दफा बात कर चुका हूं पहले भी, कि अपना एजेंडा लेके मत बैठो यार. अगर किसी की बेहतरी करना चाहते हो ना, या किसी को बेहतर सलाह मशवरा देना चाहते हो, अच्छे मैनरिज्म में दे दो. लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली देखो, वी आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू से थिंग्स विच इज doesn't hurt that many people. Exactly. So we also in the process to learn कि यार कि हमें थोड़ी सी ऐसी बात करनी चाहिए, लगी चिपटी बात करें ताकि समझ भी आ जाए और दुख भी न हो. आप किसी पे 6-7 प्रोग्राम इकट्ठे करोगे, ऑब्वियसली यार बात तो पहुंचती और दूर तक जाती. बट अगेन हैविंग सेड दैट, आई थिंक कि पाकिस्तान अब इस प्रोसेस में है, इस जगह पे है. आज की T20 की अगर टीम देखें तो मुझे इससे बेहतरी और नजर आ रही है. और ठीक ठाक इनको पकड़ के वो क्या कहते हैं, फेंटी लगानी चाहिए साउथ अफ्रीका को. बिल्कुल. और पाकिस्तान किसी तरीके से भी कोई मेजर मैसअप न करे. ठीक है. क्योंकि मैं नहीं चाहता यहां पे पाकिस्तान को मैसअप करता हुआ बाहर निकले. वो टीम इतनी तगड़ी है, बैलेंस पूरा है. स्पिनर आपको खिलाना पड़ेगा. बिल्कुल. और अगर आप उस्मान की तरफ जाते हैं, गुड इनफ, इज अ ग्रेट स्पिनर. अगर आप नवाज की तरफ जाना चाहते हैं, इज अ ग्रेट स्पिनर, ग्रेट ऑलराउंडर एट द सेम टाइम. But again, it's going to be a tough selection for the management. Exactly, and we'll truly come back to that as well. But ladies and gentlemen, since we mentioned that we are actually going to, kind of, हम शेयर करना चाहते हैं आप सबके साथ हफीज की एक सक्सेसफुल जर्नी. हमने एक पैकेज बनाया जो हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं. लेकिन इससे पहले कि हम आपको पैकेज देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 99 T20 उन्होंने खेले, 2323 रन बनाए विद द एवरेज ऑफ 27.99. उसमें इनकी 14 हाफ सेंचुरीज हैं. फिर उसके बाद 232 चौके मारे और 71 छक्के मारे. क्या खूबसूरत खेलते हैं. बल्कि उन्होंने बीच में अपनी गेम को इंप्रूव करने के लिए गोल्फ स्टार्ट की और उसके बाद से लेडीज एंड जेंटलमैन ही इज अनबीटेबल. लेट्स टेक अ लुक एट दिस लेजेंडरी प्लेयर वी नो एज मोहम्मद हफीज. आप ये भी देखें, लेकिन अगेन वो मैन ऑफ क्राइसिस भी है. मैन ऑफ क्राइसिस इस तरह नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं करता. मैन ऑफ क्राइसिस इस तरह भी है कि वो आपको उस जगह, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हफीज नीचे से ना करता या माद वसीम ना करते, 340 तो ना होता है. सही है. तो देखिए उसने अपना चिपन किया है, अपना हिस्सा डालता और आज भी डाल रहा है. और ये भी कह रहा है कि मैं वनडे के लिए भी तैयार हूं. ठीक है, ये खूबसूरत बात है. लेकिन एक और यहां पर जो बात मैं करना चाहता हूं, और बहुत सारे लोगों के जहन में भी होगी ये बात सिर्फ ये है कि जब इतना सीनियर खिलाड़ी हो तो थोड़ा सा बोर्ड उसके टर्म्स के लिए फ्लेक्सिबल हो सकता है, ये नहीं हो सकता. क्योंकि पीछे हाल ही में हमने देखा जब इनको बायोसिक्योर बबल का इशू आ रहा था, बाहर थे ये, इनको कहा गया कि पीएसएल में अगर आप इंक्लूजन चाहते हैं तो आपको पहले आना पड़ेगा. वो नहीं, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल कर सके. तो जब इतने बड़े कैरेक्टर का करिज्मेटिक प्लेयर हो आपके पास, तो बोर्ड को कन्वीनियंस देनी चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी देता है बोर्ड. आप अपने ब्रांड्स को खुद संभालते हैं. बिल्कुल. और अपने ब्रांड्स को सेफ गार्ड करके आप उनसे जो मैक्सिमम उनसे रिक्वायरमेंट होती है वो निकालते हैं आप. ठीक है. आप ये नहीं करते कि आप ब्रांड से बदला लेते हो. पीसीबी इज अ ब्रांड, हफीज इज अ ब्रांड. एट द सेम टाइम ये दोनों ब्रांड मिलकर पाकिस्तान की विक्ट्री में हिस्सा डालेंगे. एक सिलेक्ट करेगा, एक सिलेक्ट होके आपको मैच जिताएगा. बिल्कुल.
अल्टीमेटली मैच जीतने से क्या होगा, स्पॉन्सरशिप आएगी, टीआरपी आएगी, व्यूअरशिप आएगी, ऑफिस को फॉलो करेंगे. देखा ना, इन्वेस्टमेंट है ना. ऐसे ही तो सारी एक इंडस्ट्री रिवॉल्व करती है एक पूरे उसके साथ, पूरे एक मैकेनिज्म के साथ रिवॉल्व करती है. ये नहीं होता कि एक बंदा होता है, एक बंदा नहीं होता, एक इंडस्ट्री होता है, पूरा टीम होती है. उस इंडस्ट्री को कभी भी अगर थोड़ी बहुत 19-20 हो जाए तो नॉट आउट ऑफ आप वेज आके उसको कंफर्टेबल करते हैं, नहीं, विद इन द लाइंस आप उसको कंफर्टेबल करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप अपने प्लेयर्स को सेफ गार्ड करके खिलाते हैं. बायस कोई बबल का इश्यू जो हुआ था वो बात पुरानी हो चुकी है. नाउ ही इज अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड नाउ, एंड नाउ इज इन अ वेरी गुड ऑफ ग्रेट थिंग मिस्ड राइट नाउ कि जहां पे ये आज ये देखना चाहेगा कि हफीज की बारी किस नंबर पे आती है, ठीक है, और वहां से वो कितना लेके चलता है, बिकॉज ही इज वेरी ईगर टू परफॉर्म. बिल्कुल ऐसे ही है. मोर देन बाबर आजम एंड मोर देन शर्जील. मौका बड़े से बाद में, और शर्जील के पास है बॉलें इतनी सारी, फखर के पास है कॉन्फिडेंस इतना सारा. अब यहां पे देखिए, ये पहले 4 प्लेयर तो बारी नहीं देंगे. जो मैक्सिमम रन्स करते हैं लोग वो करते हैं जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बॉलें खेलते T20 में. ठीक है जी. अब मैक्सिमम बॉलें रिजवान को ही यहाँ नहीं मिलेंगी, रिजवान को नहीं मिलेंगी. नहीं, रिजवान की अगर हम वनडे की परफॉर्मेंसेज भी देखें तो 140 आउट किए, उसके बाद रिजवान वनडे में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका. देखिए, वो इसलिए अच्छा परफॉर्म किया PSL में कि वो ऊपर खेले. बिल्कुल. T20 के फॉर्मेट में जो ऊपर खेलेगा, जो अपने आप को मैक्सिमम टाइम देगा, वो परफॉर्मेंस करेगा, वो खेल जाएगा. ठीक है ना जी. आज के लिए क्रिकेट में इतने दायरों के साथ और इतनी आसान तो नहीं कि बॉलिंग, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के साथ लोग बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हैं. ठीक है. और पहले 4 ही टॉप प्लेयर, दुनिया के 4 ही टॉप प्लेयर टॉप रैंकिंग में होंगे. बिल्कुल ऐसे ही है. कभी आपने देखा 6ठे नंबर पे कोई आगे कर रहा हो, कोई नहीं. इसमें जॉस बटलर है, बेन स्टोक है, वो भी देखें, वो भी 23 पे 50, 20 पे 50. देखना, अब ऐसी इनिंग्सें बहुत कम आती हैं, रोज रोज देखने को नहीं आती, लेकिन जो मैक्सिमम फायदा होता है ऊपर 4 के होता है. ऊपर के 4 जो शर्जील है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो छोड़ेगा, वो मेरी मौत है फास्ट बॉलर्स के लिए. ऐसे ही है. और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और विकेट अच्छा मिलेगा, थोड़ा बहुत जो बॉल का. वैसे आपके ख्याल में कैसा विकेट होगा? इसको सूट करता है, फखर को सूट करेगा, शर्जील को सूट करेगा, और बाबर को भी सूट करेगा, हफीज को भी सूट करेगा, रिजवान सबको सूट करेगा. प्रॉब्लम देखें, यहाँ पे 2 आउट हुए हैं सीरीज में, पहले 2 वनडेज में, एक स्लोअर पे, एक पिछले वाले बॉल पे. ऐसे ही. ठीक है. आप थोड़ा सा स्टे बैक, जस्ट चेक द बाउंस. देखो, इक्वल बाउंस तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आएगा, आपकी चेस्ट से थोड़ा ऊपर आएगा, मुंह की तरफ आएगा. बिल्कुल. यहां पे पुल या हुक मारना आसान नहीं होगा. सामने वाली जो मिड विकेट है मारना मुश्किल है, इसके पीछे गिरना, फील्डर अगर रखा हुआ देखने का अगर आप टपवा सकते हो ठीक है, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. ट्रू. ओके, बट यही वो जगह है जहां फखर ने रन्स किए हुए, यही वो जगह है कि उसने कैसे रन्स किए हुए. जस्ट हैव अ लुक एट हिम. आई एम टॉकिंग अबाउट शर्जील. हैव अ लुक एट हिम कि इसने क्या, व्हाट ही हैज डन राइट, बिकॉज ही हैज बेटर शॉट्स देन फखर जमान. पावर बेटर भी है ऑब्वियसली शर्जील. हाँ जी. और पिछला बॉल इस फखर से बहुत अच्छा खेलता है. थोड़ा सेटल इन करे अपने आप को, फिर उसके बाद जो मार धाड़ करनी है उसने बिल्कुल करे. एंड आई एम गोना बी रियली रियली हैप्पी टू सी कि हमारे दोनों ओपनर, तीसरों को बारी दे, तीसरा चौथा तो मेरा ख्याल किसी को नहीं देगा जो हफीज है. एग्जैक्टली, दैट्स वंडरफुल. थैंक यू भाई फॉर समिंग इट अप सो वंडरफुली वेल एज वेल. लेकिन अब मेरा ख्याल है ये सवाल बड़ा जायज है कि स्पिनर, हम एक स्पिनर के साथ जाएं, 2 स्पिनर्स के साथ जाएं, क्या करें. उसके अंदर मैं शाहीन की बात करना चाहता हूँ कि शाहीन को हम तीनों फॉर्मेट्स में खिला रहे हैं. आगे हमने जिम्बाब्वे भी जाना है, टेस्ट सीरीज भी है, वहां पे भी हम खिलाएंगे. वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? T20 हमारे कितने हैं? T20 यहाँ पे 4 हैं. 4 है. हाँ, जिम्बाब्वे में आई गेस 2 है. 2 हैं. 3 आई थिंक पहले 2 खिलाने चाहिए 3 है शाहीन को, कि हम चांस नहीं ले सकते. हम इसलिए चांस नहीं ले सकते कि T20 का मसला है, पहले T20 का हम 2 जीत कर उसके बाद रेस्ट करा दें. ठीक है. और वैसे भी 4 ओवर है, कोई 400 नहीं है. सो आई थिंक शाहीन विल बी वेरी हैप्पी टू प्ले इन दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट. वो एंजॉय करता है इस फॉर्मेट को. सही. और वो जोर भी उसका बड़ा मजे का लगता है, तो वो नहीं चाहेगा कि पहले 3 खेल ले, सीरीज विन कर लें. हम ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे हम अभी सीरीज जीत चुके हैं. फील ऐसे ही ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं. साउथ अफ्रीका खेलने आई है टीम, और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तगड़ी टीम लग रही है, लेकिन पाकिस्तान को अच्छा खेल के यहाँ पे आपको साबित करना पड़ेगा. बट अगेन आई थिंक पाकिस्तान नीड्स वन स्पिनर. वन स्पिनर. वो उस्मान होगा या नवाज होगा, कौन होगा? बोथ ऑफ वेरी गुड,
both are very good. Nawaz can bat a bit. So let's see. And it's going to be a tough choice. आपको प्रॉब्लम प्लेंटी होना चाहिए यार. प्रॉब्लम प्लेंटी होना मुझे मजा आता है. बिकॉज प्रॉब्लम प्लेंटी ना हो तो तब यार प्रॉब्लम है. एग्जैक्टली. अब आपको किसी को निकालना, किसी को रखना है, तो वेरी गुड सिलेक्शन. बोर्ड ने फाइनली सिलेक्शन कमेटी ऐसी बनाई जो प्रॉब्लम प्लेंटी इकट्ठा कर रही है कि हमें किसी को बाहर करना है, किसको लाना है. तो ये अच्छी बात है यार कि अगर लोग बाहर बैठे अपनी जगह को बनाने के लिए, बहुत अच्छी बात है. आई थिंक दैट्स वंडरफुल एज वेल. लेकिन मैं वापस रिजवान के ऊपर आना चाहता हूँ. रिजवान ऑब्वियसली वनडे इंटरनेशनल में नहीं उस तरह से परफॉर्म कर पाए. हम आपको उनकी बैटिंग भी दिखाते हैं, फिर आपसे कमेंट लेते हैं कि क्या उनकी जगह तब्दील करने से रिजवान के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, और अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो हम प्लेयर को खराब करने के बजाय उसको उसी जगह क्यों नहीं खिलाते जिसकी उसके तैयारी कराई गई है. आई जी, लेट्स टेक अ लुक. उसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो डिफिकल्टी होती क्यों है बेसिकली परफॉर्म करने में? देखिए, एज ओपनर गैप्स बहुत ज्यादा होते हैं. एज ए सेकंड बारे में फील्डर बाहर होते हैं, कुछ शॉटें आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं. ठीक है. जो मैं करना चाहता हूं मुझसे नहीं होता. T20 ऐसा फॉर्मेट है जहां पे अगर आपको बॉल ज्यादा मिले और गैप्स भी ज्यादा मिले और आप अपश खेल सकते हो या आप कट पुल खेल सकते हैं, रिजवान खेलता है बिल्कुल, तो आपके लिए आसानी रहती है. लेकिन आपका नंबर शिफ्ट करने से आपकी थिंकिंग और माइंड सेट भी चेंज होता है कि अब इस नंबर पर मुझे कैसे खेलना चाहिए. बिल्कुल. मुझे रन बॉल खेलना है, मुझे लेके चलनी सिचुएशन पूरी, या जैसे रिजवान से हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो शायद लेके चलेंगे नीचे से, कि रोल करेंगे सिचुएशन को या स्ट्राइक अपना बेहतर करेंगे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे वो हो नहीं पाया. बिल्कुल. तेज खेले, 13 बॉल में 13 किया, लेकिन नॉट गुड इनफ. बिकॉज हमें चाहिए कि डाउन टू द ऑर्डर जाके वो अपनी एक टेलेंडर के साथ अपनी इनिंग्स फिनिश करें. ट्रू. जो अनफॉर्चुनेटली उनसे नहीं हो सका, लेकिन वो कर सकते हैं. ठीक है. सरफराज ने बड़ी दफा किया हुआ है, टेस्ट मैचेस में भी, वनडे में भी. रिजवान ने भी किया हुआ. अब देखिए, दोनों कीपर में से एक कीपर आपको देखना पड़ेगा एज अ फ्यूचर. मैं ये देख रहा हूं कि हम किसको देख रहे हैं. क्या हम सरफराज को देख रहे हैं, रिजवान को देख रहे हैं? सरफराज डेफिनेटली हैड हिज टाइम, एंड नाउ वी गॉट टू थिंक अबाउट इट कि हाउ मच वी नीड टू और हाउ मच वी विलिंग टू इन्वेस्ट इनटू रिजवान. ठीक है. एंड इन व्हाट फॉर्मेट, किस जगह पे और किस जगह पे खिला के. ठीक है. ये हमें सोचने की जरूरत है, बिकॉज ही इज बिकमिंग अ ब्रांड. सो नो डिसरिस्पेक्ट टू सरफराज, बिकॉज सरफराज इज ऑल्सो अ ग्रेट फॉर्म में है. अगर वो पहले 2 वनडे खेल जाता तो उसमें स्टोरी फर्क हो जाती है. अगर वो परफॉर्म कर जाता देन प्रॉब्लम प्लेंटी हो जाता. आई थिंक दैट्स वंडरफुल एज वेल. लेकिन यहाँ पे एक और चीज खवातीनों से हमें एक ब्रेक पे जाना है. ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल भी छोड़ देता हूँ कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक रेड मार्क है, सिलेक्शन डिलेमा है थोड़ा सा. वो इस वजह से है कि जैसे हमने टेस्ट में यासिर को बिठाया, फिर हम जाहिद को लेके आए. जाहिद का T20 का बहुत अच्छा डेब्यू था. अब उसको इंक्लूजन उसकी हो सकती है, नहीं हो सकती, इसके ऊपर बात करना चाहते हैं. टॉस जीत के क्या हमें बैट करना चाहिए या हमें फील्ड करनी चाहिए? हमें चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि अभी आजकल का जो जितनी क्रिकेट मैं देख रहा हूं, लोग ज्यादा पसंद करें कि हम चेज करें. उसकी क्या रीजन है, उसके ऊपर बात करेंगे. जोबा की पिच का बिहेवियर क्या होगा, उसके अंदर उस बिहेवियर में क्या स्पिनर्स क्रूशियल रोल प्ले कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या हमारे पेसर्स क्रूशियल रोल प्ले कर सकेंगे या नहीं. गेम ऑन, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक.